ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി അവിനാഷ് സാബ്ളെ. കനത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലും വെങ്കലം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലക്ഷ്യ സെൻ. ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക്. പുരുഷന്മാരുടെ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ജർമ്മനിയെ നേരിടും. ടേബിൾ ടെന്നീസ് പുരുഷ സഖ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയെ നേരിടും. ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. പാരീസിൽ പരക്കെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിലും കാർമേഘം മൂടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോർട്ട് ദേ ല ഷപ്പേൽ അരീന. ഇന്ത്യൻ താരം ലക്ഷ്യ സെന്നിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു शिबू जॉर्ज. ला शपेला एरेना में भारत के लिए कल का दिन निराशापूर्ण रहा. अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके. लक्ष्य सेन का मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जिया से था. इतिहास लक्ष्य के पक्ष में था क्योंकि अब तक दोनों खिलाड़ी 5 बार आमने सामने आ चुके थे और इसमें 4 बार लक्ष्य ने जीत हासिल की थी. कांस्य पदक मुकाबले की शुरुआत भी कुछ इसी तर्ज पर हुई. पहले गेम में लक्ष्य ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 20 मिनट में गेम 21-13 से अपने नाम कर लिया. दूसरा गेम संघर्षपूर्ण रहा. पलटा कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, लेकिन 12-12 की बराबरी के बाद ली ने लगातार बढ़त बनाए रखी और गेम 21-16 से अपने नाम कर लिया. इस बीच लक्ष्य सेन चोटिल भी हो गए. निर्णायक गेम में लक्ष्य पूरी तरह दबाव में दिखे और ली ने 21-11 से गेम जीत कांस्य पदक अपने नाम किया. लक्ष्य सेन. At this point, I don't know what to say, and it feels. First game you won comfortably. After that, what happened? You had some injury? No, the hand was just bleeding, so it was stopping the play at times, and nothing. It's just a bruise. Yeah, I think at times the game was going on hold because of there was blood on court, and we couldn't really continue. But since then they put a plaster on, and then but still there was little bit bleeding that was coming off, and it was disturbing on the court. Was it the turning point? No, I don't think so. He played a really good game. I think once he got the rhythm, and then it was difficult for me to find winners from the second game, and couple of bad line calls from your side. Yes, I think could have done better. कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जिया ने कहा कि पहला गेम हारने के बावजूद वे वापसी करने में सफल रहे. We both played a very good game today, and especially this bronze medalist match. We wanted it so much because I think it's kind of honor to be in these Olympic Games, and somehow we are in the semi-finals for the bronze medalists, and we'll go all out as well. The first game you lost. I just try to overcome the situation, although in that kind of situation it was quite tough, and especially he won the first game. Somehow he has controlled the situation in the opening for the second set as well, but somehow I didn't give up and try something and try again, and somehow I will come in and won the game. So it's a... भारी तादाद में भारतीय दर्शक लक्ष्य सेन के समर्थन में मौजूद थे. I'm Bhanu. I'm heartbroken. It's so sad to see that he lost, but he's 22 and he must be having great future. I hope best for him. I'm Jeevana. I came here to support him, obviously. He did his best. We enjoyed the match so much. He gave good competition, and I hope he wins lots of matches, and he maybe win the next Olympics. He's just 22 years. Good luck for him. उधर स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड के कुनलावत विटिटसरन को 52 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11 से मात दे दी. विक्टर एक्सेल्सन अपने दूसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक से काफी खुश दिखे. Victor, congratulations. You have defended your gold medal. How does it feel? Feels amazing. I don't know what to say. Until I hit the last smash down the line and won the match, I didn't dare to believe it. Winning 1 Olympic gold is crazy. Winning 2 is crazy times 2. So I am so happy, and I don't even know what to say. Was the match that easy as the scoreline suggests? No. Mentally it was very, very, very tough. I really had to focus, and Kunlavud is such an amazing, talented player, so I know even though he was trailing behind, he can still come back, but I'm happy he didn't do so. रजत पदक विजेता कुनलावत विटिटसरन अपने प्रदर्शन से संतुष्ट थे. For me, it's just okay. I come the first time in Olympic game, and I come to the final.
Victor is very tall, right? If I play like not make him run in the court, he must to control me in the court, and I must to try the good shot, and sometimes it's the easy mistake, and then give him easy point, and yeah, it's okay. Today I'm really happy in this match. महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एन से यंग ने चीन के हेबिंग जियाओ को हराकर अपने नाम किया। ला शपेला एरेना से मैं शिबു ജോർജ്। കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുമായി പുതിയ താരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മാത്രമല്ല, മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന എല്ലായിടവും കായിക പ്രേമികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. കായിക മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് എത്രത്തോളം ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ അവിനാഷ് സാബ്ലെ പുരുഷന്മാരുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ് മത്സരത്തിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങി. ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിനും ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു സാവിയോ നൊറോണയും മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസും. As always, the atmosphere at the Stade de France is simply unparalleled, but the emotions and the thoughts that the athletes go through are simply unforgettable. India's Kiran Pahel has qualified for the repechage round of the women's 400 meters event. The first in each repechage heat and the next two fastest will advance to the semi-final. Army man Avinash Sable created history by becoming the first Indian ever to qualify for the final of the men's 3000 meters steeplechase event. A happy and confident Avinash spoke to Mahendra Singh Lalas. फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर लिया, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि टोक्यो में कमी थी। टोक्यो में मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। जरूर अपना बेस्ट किया था, लेकिन एक उम्मीद के साथ आया था कि बहुत अच्छा होगा, वो नहीं हो पाया था। तब तक मेरी जो स्टीपल चेस की जर्नी थी वो भी बहुत कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था। लगता था कि सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है सक्सेस के लिए टाइम लगता है, सक्सेस टाइम मांगता है, और वही मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं अच्छे फिटनेस के साथ जा रहा था और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल की जो तैयारी है, मैं पूरा सीजन यही सोच के तैयारी कर रहा था कि मुझे बाकी कंपटीशन में मेरा कुछ भी हो, मुझे हीट्स को टारगेट करना है। मुझे मतलब ये भी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा जान लगानी, मुझे सिर्फ बेस्ट 5 में आना था, और मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला किलोमीटर मैंने लगाया, फिर सेकंड में मैं उनको फॉलो किया, थर्ड में जब मुझे पता चल गया कि सिर्फ 5 ही भाग रहे तो क्यों जान लगानी है, तो मैं लास्ट जो लैप में 200 में ईजी आया। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो फाइनल के लिए एनर्जी स्टोर है वो है, मैंने रखी है, और 7 तारीख को मेरा फाइनल है। कोशिश यही रहेगी कि इंडिया के लिए कोई ऐसी हिस्ट्री बनाओ जो मतलब हमारे बहुत सारे एथलीट यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे हमारे पीटी उषा मैम है, श्री राम सर है, मिल्खा सिंह सर है। मैं मतलब उन रनर्स को अपना आइडल मानता हूँ, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। मैं यही कोशिश करूँगा 7 तारीख को देश के लिए ऐसा कोई मतलब ये बना दूँ, मूवमेंट बना दूँ जो पूरा देश सेलिब्रेट करे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। सभी ने मुझे यहाँ तक जर्नी में मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मुझे फाइनल्स के लिए सपोर्ट करे, प्रे करे कि मैं अपने देश के लिए मतलब अच्छा रिजल्ट दूँ। अपनी तरफ से तो मेडल का सोच के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपटीशन में अगर फाइनल में जा रहा हूँ तो मैंने ट्रेनिंग में भी कभी नहीं सोचा कि मुझे मेडल के अलावा किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग करनी है। बाकी मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट चाहे उस दिन जो भी रहे। मैं उस रेस को ऐसे दौड़ूंगा जैसे कि मेरी लाइफ की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस है, मैं अपना लगाना चाहता हूँ इस रेस के लिए। मेरे पास फिटनेस हर चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, कि मुझे कैसे भी रेस जाए, टैक्टिकल रेस, मैं उसके लिए रेडी हूँ। बस मुझे फाइनल का इंतजार था और वो टाइम मेरे लिए आया है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं फाइनल्स में ना कि किसी को फॉलो करूँगा, मैं अपने दिमाग से अपना जो बेस्ट है वो मैं दूंगा। चाहे मेरे से कोई बेस्ट अच्छा करे, मुझे मतलब उससे रिजल्ट से कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग की है, मैंने जो प्लान बनाया, मेरे कोचेस ने जो प्लान बनाए, ये भाई ने मुझे बताया जैसा रेस के लिए प्लान करना है, तो मैं उस तरीके से जाऊँगा। शायद मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रेटेजी से मैं मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी की स्ट्रेटेजी में ना फंसूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी से रेस लगाऊंगा, जिससे कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास शायद ये तो नहीं पता होगा कि अगले वाला प्लेयर कैसे लगाने वाला, शायद उनके पास अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी से रेस लगाऊं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। कल ही आपकी रेस देखने के लिए रुके भी थे? मतलब अच्छा है, मैं उनको पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब उनको मैं देख रहा हूँ कैसे रेस लगा रहे, तो मैं काफ़ी मतलब सभी जैसे हमारे स्टीपल चेस में जो भी पोडियम पे एथलीट आते हैं या अभी जो फाइनल में है, सबके बारे में मैंने मतलब एक स्टडी की है, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस कौन एथलीट कैसे जाने से हमने कैसे भागना है। तो मुझे लगता है हमने जो प्लान किया है, हमने ग्राउंड पे जो मेहनत की, लेकिन जो हम मेंटली प्रिपेयर है उसके लिए, तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जो उनकी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को मतलब बहुत जल्दी समझने की कोशिश करूँगा पहले 1-2 लैप में, क्योंकि उसके बाद कोई टाइम नहीं रहेगा, और मैं उनकी स्ट्रेटेजी देखते अपने प्लान में आ जाऊँगा और रेस को शायद अपने तरीके से ले लूँगा।
In women's discus throw finals, Valerie Allman added to USA's medal tally by taking the gold. Kenya's Beatrice Chebet became the Olympic champion in the women's 5,000 meter final. And Great Britain's Keely Hodgkinson took gold in the women's 800 meter final. With Mahendra Singh Lalas, I'm Savio de Naruna. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ അവസാന ദിനമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3 മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ച മത്സരം അവസാനിച്ചു. സ്കീറ്റ് മിക്സഡ് മത്സരത്തിൽ അനഞ്ജീത് സിംഗ് നടുകയും മഹേശ്വരി ചൌഹാനും മത്സരിച്ചു. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ ഈ സീസണിലെ അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ടുമായി ചേരുന്നു നിതീഷ് അറോഡ. शूटिंग स्पर्धा के अंतिम दिन चलिए क्यों ना आपको पेरिस से शातोह तक के सफर को पूरे फील के साथ लेकर जाया जाए। शातोह में ज्यादातर मुकाबले प्रातः 9 बजे शुरू होते हैं, तो पेरिस ऑस्ट्रेलिस से प्रातः 5:18 पर चलने वाली ट्रेन सबसे उपयुक्त ट्रेन रहती है। ये इंटरसिटी शटल ट्रेन कहलाती है, जो 275 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 15 मिनट में पूरी कर देती है। रास्ते में केवल एक स्टॉपेज और हम शातोह पहुंच गए। शूटिंग रेंज लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी सवारी शटल बस की करनी पड़ती है, जो 8 बजे मिलती है। 15 से 20 मिनट के बाद आप रेंज के आउटर गेट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद या तो बैटरी ऑपरेटेड 4 व्हीलर को लेकर चलें या फिर प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेते लेते पैदल ही पहुंच जाएं। शातोह शूटिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये लाइव म्यूजिक बैंड डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक सभी विजिटर्स का बिल्कुल वैसे ही स्वागत करता है। शूटिंग रेंज के बाहर अगर किसी को टिकट नहीं मिली है, ज्यादा रश हो गया किसी पर्टिकुलर मैच का, तो एक जायंट स्क्रीन लगी है, वहां पर बैठकर आप उस इवेंट को देख सकते हैं, या फिर पेरिस की दूसरी जगहों पे जो इवेंट्स हो रही हैं उनको देखा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये सफर? अब शूटर्स के सफर की बात हो जाए। खेलों के 10वें दिन शूटिंग की प्रतियोगिताएं स्कीट मिक्स टीम के साथ संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जोड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान 2 राउंड की समाप्ति तक टीम 5वें स्थान पर थी। तीसरे राउंड की शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई और धीरे धीरे करके टीम 12वें स्थान तक पहुंच गई, लेकिन आखिरी शॉट्स में जबरदस्त शूटिंग करते हुए 4थे स्थान पर टाई कर लिया चाइना की टीम के साथ, और फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए फाइनल में जगह बना ली चाइना के साथ ही। ये हलचल, ये माहौल है स्कीट प्रतियोगिता के लिए जब भारत की टीम मैदान में उतरी। स्टेशन 3 सबसे पहला नंबर चीन का, क्योंकि चीन तीसरे स्थान पर था, और दोनों ही खिलाड़ियों ने 4-4 अंक बटोरकर स्कोर 8 कर लिया। भारत की तरफ से एक फाउल शॉट अनंतजीत सिंह निरूका की और स्कोर 8-7। स्टेशन नंबर 2 चीन 7 भारत 6। स्टेशन नंबर 5 दोनों टीमें 7-7, और पहले राउंड की समाप्ति पर स्कोर चीन 20 भारत 20। दूसरे राउंड में भी स्टेशन 3 पर भारत के 7 और चीन के 8, स्टेशन 4 पर भारत 8 चीन 8, स्टेशन 5 पर भारत 8 चीन 8। टोटल स्कोर भारत 43 और चीन 44। कांस्य पदक स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट का चीन के खाते में। The players. It's natural if you're in Olympic final, there are going to be nerves no matter what. For us, I think what we need is more experience in more international high-level matches to have competed the way we did today. And I think I'm really proud of the both of us, because for us this is the first major final. And nerves are inevitable, especially at Olympic finals. So I think we did great. But we both have to be strong, we have to be strong. It's going to be difficult now going back home, being so close to the medal, and we were really expecting one shotgun medal from us. Thank you for all the support back at home and all the people cheering for us here. It will be better in LA. 21 सदस्यीय भारतीय शूटर्स का दल कुल पदक संख्या 3 के साथ वतन वापसी करेगा। खिलाड़ियों ने जी जान लगाकर प्रदर्शन किया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री कलिकेश नारायण सिंह देव 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीता है इंडिया के लिए, और ये पहली बार शूटिंग में इतने मेडल्स आए हुए हैं एक ही ओलंपिक में। खाली मेडल नहीं, एथलीट्स फाइनल्स में गए थे, बहुत क्लोज परमाने से उन्होंने ब्रॉन्ज मिस किया, एक ही शॉट से चूक गए। तो ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा है शूटर्स का, और मैं सोचता हूं कि आने वाले दिन में हम वर्ल्ड कप फाइनल, जूनियर वर्ल्ड कप, कोटा वाले वर्ल्ड कप्स भी हम इंडिया में लाएंगे, और भी जोर देंगे कि हमारी इंडियन टीम जो है 28 ओलंपिक्स LA में और मेडल लाए, गोल्ड मेडल का भी हम एम्बिशन रखें। इसके साथ ही 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों से शूटिंग स्पर्धा से मेरा और आपका सफर खत्म होता है, लेकिन बाकी खेलों का कारवां चलता रहेगा। शातोह शूटिंग सेंटर से आज अंतिम बार आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा।
ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സുധീർ രചൌരിയ. महिला टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त भारत का मुकाबला अपने से कहीं ऊपर चौथी वरीयता प्राप्त रोमानिया की टीम से था. भारतीय टीम में शामिल थीं अनुभवी मनिका बत्रा, श्रीजा अकूला और युवा अर्चना कामत. तो रोमानिया का प्रतिनिधित्व कर रही थीं अडीना डायकोनू, सेच बर्नाडेट और समारा एलिजाबेटा. सबसे पहले डबल्स मुकाबले में श्रीजा और अर्चना के सामने थी अडीना और समारा की जोड़ी और भारतीय जोड़ी ने ये संघर्षपूर्ण मैच 11-9, 12-10 और 11-7 से जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की. बात अगर दूसरे मैच की करें तो इस मैच में मनिका बत्रा ने सेच बर्नाडेट को सीधे गेम्स में 11-5, 11-7, 11-7 से हराकर भारतीय दावे को मजबूत किया. ये पूछे जाने पर कि क्या ये मैच उनके लिए बहुत आसान था, मनिका ने कहा, I was more calm because I have played against Bernie Zox and I have lost recently against her. But yeah, in this match I was well prepared and I told myself that I am the best. I have to give my 100% for my team, myself and for my country. So I think that really helped. तीसरे मैच में श्रीजा अकूला का मुकाबला सामरा एलिजाबेटा से था, जहां श्रीजा बेहद अच्छे खेल का प्रदर्शन करने के बावजूद ये मैच गंवा बैठी. अब दबाव भारतीय टीम पर आ गया क्योंकि स्कोर 2-1 हो गया था. चौथे मुकाबले में सेच बर्नाडेट के सामने उतरी अर्चना कामत और ये युवा खिलाड़ी बर्नाडेट के सामने टिक न सकी और 5-11, 11-8, 7-11 और 9-11 से हार गईं. इस हार के साथ ही ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर आ गया. अब भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने का सारा दारोमदार मनिका बत्रा के अनुभवी कंधों पर था और उन्होंने भारतीय खेल प्रेमियों को निराश नहीं किया जब अडीना डायकोनू को 11-5, 11-9, 11-9 से मात देकर अगले दौर में अपनी टीम की जगह पक्की की. मनिका बत्रा. Because this was the first time Indian team qualified for Olympics. In Olympic qualification, we have lost against Romania, like 2019, 3-2. So it was same. I played my last match, I lost, but this time I think I was more confident and I was more dominating, I would say. And yes, the main thing was I was getting support from the bench, from coach and from the players. So yeah, we are super happy. The best part is we started really well with doubles because that, gave me confidence. So yes, after all, I think everyone gave their best. It happens. Sometimes we lose, we win. But yeah, I'm really happy how we played and supported each other. आकाशवाणी के लिए मैं सुधीर राजौरिया. ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നില നോക്കാം. मेजबान फ्रांस की टीम ने पुरुषों की फुटबॉल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा. उधर अफ्रीकी देश इजिप्ट और मोरक्को अब कांस्य के लिए अपना मैच खेलेंगे. एथलेटिक्स में स्वीडन के मोंडो दुप्लांती ने अपना ही पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और 6.25 मीटर की छलांग लगाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया. महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ केनिया की बीट्रिस चेबे ने जीती और उनका समय रहा 14 मिनट 28.56 सेकंड्स. ब्रिटेन की कीली हॉजकिंसन ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक के अपने रजत पदक का रंग बदल दिया. उधर महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ओलंपिक चैंपियन अमेरिकी एथलीट वॉलेरी ऑलमन ने 69.50 मीटर के थ्रो के साथ अपना खिताब बरकरार रखा. एथलेटिक्स में आज महिलाओं के हैमर थ्रो, पुरुषों की लॉन्ग जंप, पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ प्रमुख आकर्षण रहेंगे. और अब एक नजर पदक तालिका पर. 21 स्वर्ण, 18 रजत और 14 कांस्य पदक यानी कुल 53 पदकों के साथ चीन बना हुआ है शीर्ष पर. अमेरिकी टीम है दूसरे स्थान पर, कुल पदक 78, जिनमें 20 स्वर्ण, 30 रजत और 28 कांस्य पदक शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया है तीसरे स्थान पर, 13 स्वर्ण, 11 रजत और 8 कांस्य, कुल 32 पदक. मेजबान फ्रांस से चौथे स्थान पर 12 स्वर्ण, 16 रजत, 18 कांस्य, कुल 46 पदक. भारत अब है 60वें स्थान पर 3 कांस्य पदकों के साथ. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.